अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। जैसे मैंने आपको कहा है, to understand the structure of the atom, to understand the arrangement of different subatomic particles in an atom, different models were put forth by different scientists. One among them was the Thomson's model of atom that we have already discussed. And another model of the atom was put forth by Rutherford. That is why it is called as the Rutherford's model of an atom. This Rutherford's model of an atom, it is because of this model that nucleus of the fundamental portion of an atom that was discovered by alpha particle scattering experiment by Ernest Rutherford. So the discovery of positively charged nucleus in the center of an atom is attributed to Rutherford's scattering experiment. Alpha particle alpha particle scattering experiment. And because of this experiment, nucleus in an atom was discovered. Because of this experiment, that atom has a positively charged center with heavy mass. This was discovered by the alpha particle scattering experiment performed by Ernest Rutherford. In this experiment, what Rutherford did, he he bombarded fast moving alpha particles on a thin foil of gold. Rutherford bombarded fast moving alpha particles on a thin gold foil. एक तह थी गोल्ड की जिसको बम्बार्ड किया रदरफोर्ड ने, किससे? अल्फा पार्टिकल्स से। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है असल में? अल्फा पार्टिकल्स ये डबली चार्जड हीलियम 2 पॉजिटिव आयोन्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स, अगर आप देखेंगे हीलियम एटम जो है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयोन्स जो है, हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो इसमें खाली बचते हैं अंदर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है ना? 4 यूनिट्स इसका मास है। डबली चार्जड हीलियम 2 पॉजिटिव आयोन्स, याद रखना, डबली चार्जड हीलियम आयोन्स। तो ये है अल्फा पार्टिकल्स, मैसिव पार्टिकल्स होते हैं ये भी। ठीक है ना? तो जब रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस वहाँ देखने को मिली रदरफोर्ड को। So in this experiment, the fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil, and alpha particles are positively charged particles having 2 units of positive charge and 4 units of mass। याद रखना, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन जो है 2 यूनिट्स इसके चार्ज हैं और 4 यूनिट्स इसके मास हैं। असल में ये लाए कहाँ से? दीज आर इमिटेड बाई, ये इमिट कौन करता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स like रेडियम या पोलोनियम। 2 एलिमेंट्स हैं जो इनको इमिट करते हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स को, रेडियम या पोलोनियम। सो what Rutherford observed by bombarding these alpha particles on the thin foil of gold, say if we see a stream of atoms in the thin foil of gold like this, this positively charged center of the, as was later proposed, that when alpha particles, these are alpha particles from the source, from some source, alpha particles were made to fall on a thin foil of gold, what Rutherford observed that most of the alpha particles, they went through the gold foil straight, undeflected. Most of the alpha particles, they went through the gold foil undeflected. Number one observation was that most of the alpha particles pass straight. Most alpha particles pass straight
through the gold foil, through gold foil। नंबर 1, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिविएट होते हैं। जैसे आपको यहाँ देखिए, आप कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिविएट होते हैं बाय स्मॉल एंगल्स। यहाँ से इनको डिविएशन, अब देखिए जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डिविएट हो गए अपने पाथ से, ठीक है ना। सम अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil, through the gold foil at some angles, कुछ एंगल्स पे ये डिविएट हो गई। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक भी हो गई, यहाँ से गए यहाँ। a very few alpha particles, a very, बहुत कम, a very few alpha particles, याद रखना ये, a very few alpha particles bounced back, bounced back। ये है थिन फॉयल ऑफ गोल्ड एटम, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। असल में एक ही स्ट्रीम एटम्स की नहीं है, ये बहुत सारी, मैंने यहाँ समझने के लिए आपको एक ही स्ट्रीम एटम्स की दिखाई है। तो जब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो क्या देखा उसने दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ से यहाँ गई उसी पाथ से वो पास भी हो गई गोल्ड फॉयल से। एक ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या, a very few alpha particles were deflected through small angles, through small angles, at small angles, या through some angle were deflected through small angles, and a very few were deflected through large angles also। जो ये डिविएशन मैंने दिखाई, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हो गई लार्ज एंगल से भी। एंड a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back to their path। जैसे यहाँ पे रिबाउंड हो गई, रिपल हो गई यहाँ से वापस इसी पाथ से। तो ये जब ये ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने निकाली, तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस पे उसने 3 कंक्लूजन्स भी निकाले। क्या कि पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। उसे ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो कंक्लूजन्स क्या निकाली इस एक्सपेरिमेंट से? कंक्लूजन्स नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, राइट। दूसरा, ये क्यों कहा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम व्हिच रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्ट them from their original path। this center of the positive charge in an atom is called as the nucleus। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये जो डिफ्लेक्शंस होती है चाहे लार्ज एंगल से या स्मॉलर एंगल से, ठीक है ना, तो ये जो है या कुछ एटम्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस भी होते हैं बैक। ये इसलिए होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है। एटम में कहीं न कहीं पे अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस सेंटर है। जब ये 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो ये रिपल करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक होते हैं या डिफ्लेक्शंस दिखाते हैं। सो दूसरा पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन में ये, दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, देयर इज अ सेंटर of positive charge in an atom, जिसका नाम दिया गया फिर बाद में क्या, न्यूक्लियस, ठीक है ना। that this positively charged, it repels the alpha particles from their path and deflects them from their original path। this center is called as the nucleus। तो तीसरा पार्ट क्या, तीसरा कंक्लूजन क्या कहा इसने, द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। क्योंकि कुछ पार्टिकल जो रिबाउंड होते हैं, इसका यही वजह है दैट जो न्यूक्लियस है ये डेंस है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज डेंस, हार्ड एंड मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है ना। एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है ये न्यूक्लियस एटम के साइज से बहुत 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 ज़्यादा कम है।
तो ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं, सो हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फोर्थ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच स्टेट्स दैट, तो एटम जो इसने एटम का जो मॉडल दिया लास्ट में रदरफोर्ड ने क्या कहा, पहला पॉइंट इसमें यही था, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। नियरली ऑल मास ऑफ द एटम इज रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, जो एटम का जो मास है वो मोस्टली रिजाइड करता है किसमें, इसी न्यूक्लियस में। नंबर दो क्या कहा, अब क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पहले ही थॉमसन ने भी कहा था, तो इसके लिए क्या कहा रदरफोर्ड ने, इसने कहा कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ये दूसरा पॉइंट था इसका, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट जो है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, तो ये तीन पॉइंट्स हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ, नंबर वन, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस and nearly all the mass of the atom resides in this nucleus. Number two point, that the electrons revolve around the nucleus in well defined orbits, and number third, the size of the nucleus is very very small as compared to the size of the atom. This was the Rutherfords model of an atom, and this Rutherfords of model of atom, it was replaced by Bohr's model of atom because of some limitations that will be dealt in next class. Thank you.